So, good morning, students. Hope all of you are fine and healthy and safe. So, in previous section, in our computer studies, we have learned about operating system. What is the operating system and what function it provides, what services it provides. Okay, so in that section, we have learned many aspects of the computer system, many functions of the computer system. We will revise those functions and we will look after. Functions of operating system: providing hardware access. Another is controlling, regulating and supervising resources in the computer. Handling multiprocessor system. Starting and stopping program execution. Controlling access of the memory, serving multiple users at the same time, providing security and providing other common services. After this, we will see the typical component of the operating system. That means if we are having the operating system, what are the most important or most necessary components for the operating system? That means if you want to say it is a complete operating system, so what are the components it must have to be completed? Typical components of operating system. Page number 46, lesson number is 5, Introduction to Operating System. So we will start with this. So in this section, we briefly discuss the components typically associated with an operating system and full environment surrounding the operating system. Okay. So while reading the description, this figure provides a simplified layer view of the operations of the computer system in the context of operating system only. सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेंट से हम लोग देखेंगे, उस रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग अगले सेशंस में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिवाइस ड्राइवर. यू आर वेल अवेयर व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन अर्लियर सेशन. What is the printer and what is the scanners are required to run. That means if you are just purchasing the printer or scanner and you are attaching this pin to the CPU, that means it is not going to work. आपने एक प्रिंटर नया सा बड़े से प्रिंटर खरीद लिया है और पिन लगा दिया CPU को, वो रन होने लग जाएगा. नो, दिस इज नॉट happening. There are some procedure we must be necessarily followed. Okay, what are these processes? The device drivers. At the lowest level is the raw hardware of the computer. As we have seen earlier, this part, often called the raw iron, is an immensely powerful machine, but has no clue as to what to do. This layer also consists of a diverse set of devices, each requiring potentially different set of instructions to operate. The device drivers are small programs that contains the instructions necessary for using these devices. While many of them come bundled with operating system, some may have to be installed separately from a disk or an internet. They are loaded and unloaded as and when needed by the kernel. The kernel uses them for operating and controlling the hardware. If you are using any operating system, that means if you are using you are assisting the Mac OS X or Windows 7 or Windows 10 or Ubuntu or Linux, any other open sources, then also whatever operating system you are using, any hardware which you are attaching to your system, that means either it is a scanner, either it is a webcam, either it is a printer, either it is any other types of devices you are attaching. That means if you are installing a big plotter or it is even those small printer or web camera also. Variety of size and uses of the devices. Whatever your new device installing to your CPU, it must be installed. यानी कि हम लोग बोलते हैं कि प्रिंटर तो नया लाया है लेकिन अभी उसका इंस्टॉलेशन बाकी है. What does that means? What is the installation? क्या हम उस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करते हैं? That means these are the utility software. These are known as the utility softwares, and these softwares are uploaded through the net or through the disk into your operating system. यानी कि कोई भी नया प्रिंटर है, कोई भी नया स्कैनर
स्कैनर है, वॉट एवर न्यू डिवाइसेस यू आर अटैचिंग, उस डिवाइस को रन करने की, उसको ऑपरेट करने की, उसको एग्जीक्यूट करने की कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स मीन्स उस डिवाइस को चलाने वाले इंस्ट्रक्शंस। दिस ऑल आर सिस्टम, दिस आर ऑल यूटिलिटी प्रोग्राम्स। वो क्या होते हैं? एक तरह के यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं और उस यूटिलिटी प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता है? आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है जिस डिवाइस का, नॉट इवन द डिवाइस, द मेक ऑफ द डिवाइस इज ऑल्सो। यानी कि अगर आपने HP का प्रिंटर लिया है, ओके, तो आपने अगर HP का प्रिंटर लिया है या फिर कैनन का प्रिंटर लिया है तो आपको स्पेसिफिक कैनन के ड्राइवर्स इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। आपका प्रिंटर HP का है तो HP की डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। इवन दो इफ यू आर हैविंग द सिमिलर कंपनी बट द मेक इज द डिफरेंट, देन ऑल्सो यू हैव टू इंस्टॉल द स्पेसिफिक डिवाइसेस। यानी कि आपका पहले HP का प्रिंटर था, ओके, अब वो HP का प्रिंटर 1010 का था, नाउ यू हैव परचेस न्यू प्रिंटर विच इज 1020। अभी आपने 1020 का, दैट्स मीन दिस इज अ मेक। जैसे कि आपकी गाड़ियों का मेक होता है डिफरेंट गाड़ीज का। अगर आपने कार खरीदी है तो कार के, अगर आपने सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक कंपनी की भी कार है तो उसके डिफरेंट मेक जिस तरह से होते हैं उसी तरह से सारे डिवाइसेस का हर एक मैन्युफैक्चरर अपना अपलोडेड वर्जन, नया वर्जन निकालता रहता है, नया मेक निकालता रहता है। तो इन द सेम वे इफ़ यू आर हैविंग द 1010 HP प्रिंटर, पहले आपका प्रिंटर HP का ही था लेकिन 1010 का था, अभी आपने जो नया लिया है वो 1020 का लिया है। दिस इज द नेम, दिस इज द नेम, उस मेक का नाम है 1010 1020 और इस तरह से उसके मेक के नेम से, दे आर मेनी डिफरेंट मेक्स ऑफ द HP ऑल्सो। सो इफ यू आर हैविंग similar manufacturers but if you are having the new version of the or new make of that similar company, then also you have to install this printer on your system। यानी कि अगर आपका पुराना HP का प्रिंटर है और अभी आपने नया वर्जन का HP का ही प्रिंटर लिया है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस नए प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर, व्हाट इज द डिवाइस ड्राइवर्स? दिस आर दी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। वो अपने आप में क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? अपलोड करवाना पड़ेगा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब तक आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में उस स्पेसिफिक डिवाइस को चलाने वाले डिवाइस ड्राइवर अपलोड नहीं कराते हो तब तक वो आपका डिवाइस क्या है? जस्ट इट इज अ डिब्बा। वो क्या है? जस्ट इज अ रॉ आयरन, इट इज नोन एज द रॉ आयरन। वो मतलब कुछ रॉ आयरन इज यूजलेस है, कुछ यूज नहीं है, सिर्फ वो डिवाइस आपके जोड़ने से वो डिवाइस रन नहीं हो सकता। सो दिस सिस्टम, दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास ये कंपोनेंट है, मीन्स कंपोनेंट्स में यू कैन से द पार्ट, okay, but not in the physical parts, you can say in the software part। यानी कि you can say कि किस किस तरह के उसके components होने चाहिए, उसके पार्ट में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके पार्ट्स में क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिस इज नोन एज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरह के जिसको कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। वैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में और भी बाकी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनमें से एक है डिवाइस ड्राइवर। व्हाट दे आर डूइंग? वो आपके डिवाइसेस को रन करने के एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स होते हैं और वो प्रोग्राम्स कौन रन कराता है? आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपकी सिस्टम को रन करता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट क्या होता है? उसमें क्या होनी चाहिए? डिवाइस ड्राइवर्स होने चाहिए, डिफरेंट। पहले तो इन कीबोर्ड माउस वगैरह को भी अगर आप लगाते थे तो उसको एक बार रिस्टार्ट करके फिर से ही वो अपलोड हो सकते थे। नाउ सम फंक्शंस आर कमिंग इनबिल्ट विद अस। कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो, जैसे कि पहले अगर आपके CPU में, अभी तो इनबिल्ट आ जाते हैं, पहले के जो पुराने कंप्यूटर्स थे उसमें इंटरनेट सीधे नहीं चलता था, ओके। जैसे कि अभी आपने कंप्यूटर ले लिया या फिर आपने लैपटॉप ले लिया या इवन आपके मोबाइल में भी, तो आप वी आर नॉट थिंकिंग, ये सोच ही नहीं सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है, बट येस इट वॉज हैपनिंग एट इन द पास्ट। व्हाट इज हैपनिंग? इफ यू आर हैविंग CPU, इफ यू आर परचेसिंग न्यू कंप्यूटर, दैट मीन डज नॉट मीन यू आर हैविंग द इंटरनेट ऑल्सो। सो आपको इंटरनेट बिठाने के लिए वहाँ पे एक इंटरनेट का लैंड कार्ड आता था, वो आपको इंस्टॉल करके उस लैंड कार्ड को इंस्टॉल करना पड़ता था, एंड देन आफ्टर यू हैव टू टेक द कनेक्शन थ्रू BSNL और एनी अदर सोर्सेज, एंड देन योर इंटरनेट इज वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर। सो दिस अभी वो क्या आता है? इनबिल्ट आता है। सो नाउअडेज सम डिवाइस ड्राइवर्स आर कमिंग इनबिल्ट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं,
एक ही मैन्युफैक्चर के 10, 20, 40 मेक्स होते हैं, तो सारे के सारे डिवाइस ड्राइवर्स अपलोड करके सिस्टम सॉफ्टवेयर में डालना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना पॉसिबल नहीं होता है। सो जो डिवाइस आप परचेस कर रहे हो उस स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर आपको अपलोड करना पड़ता है, यानी कि इंटरनेट से डाउनलोड करा के आपके सिस्टम में डलवाना पड़ता है, और या तो फिर सीडी या पेन ड्राइव के थ्रू आपको उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है। देन ओनली योर डिवाइस विल वर्क विथ प्रॉपरली। सो दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज द फर्स्ट वन, द डिवाइस ड्राइवर्स। अनदर इज द कर्नल, दिस इज नोन एज द कर्नल। द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट। ये बहुत ही एक डिफरेंट कंसेप्ट है, बच्चे इस बारे में बहुत कम जानते हैं। सो बी केयरफुल एंड व्हाइल आई एम रीडिंग पे द अटेंशन। द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द मेन प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका जो कोर होता है, ओके, यू नो द कोर ऑफ द अर्थ, यू नो वे, तो उसका जो कोर होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसका जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पार्ट होता है, दिस इज नोन एज द कर्नल। The kernel is the core component or the main program of the operating system. A traditional kernel performs all the key functions of an operating system, including detecting new hardware when attached and loading appropriate device drivers to access it, accessing and controlling all hardware devices through the device drivers, resource allocation and management, creating, stopping and controlling program executions, scheduling program executions, providing CPU input output and memory protection, input output management, memory management, security, etc. By some definition, the kernel is the IS, the operating system. Okay, so the kernel is the core component. आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिस तरह से आपका सिस्टम का मेन पार्ट होता है आपके सिस्टम का आपका कंप्यूटर, तो आपकी इस कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है आपका सीपीयू। उस सीपीयू में भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कीबोर्ड, आपका मदरबोर्ड में भी आपका एक विद इन स्क्वायर शेल, आपके इस मदरबोर्ड के ऊपर एक शेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, वो होता है सीपीयू। और उस सीपीयू में भी रॉम होती है, रॉम में भी होता है बायोस का प्रोग्राम। सो इन दिस वे दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर द योर सीपीयू। इन द सेम वे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपका कर्नल। कर्नल इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम। आप ये समझिए, कर्नल इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम। कर्नल क्या करता है, कर्नल वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन वर्क है, उसको चलाने का जो मेन तरीका है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कामों को जो कराता है, उसका जो मेन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है वो होता है कर्नल। ओके, जो कर्नल क्या होता है, वो क्या काम करता है, या यूँ पूछिए कि वो क्या नहीं करता है। ओके, वॉट एवर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग, ऑल द फंक्शंस आर रन बाय दिस कर्नल। वी विल रीड अगेन। ओके, traditional kernel performs all the key functions of an operating system. That is the main important part. All the key functions of the operating system, including detecting new hardware. जैसे ही आप USB आपका पेन ड्राइव है वो अटैच करते हैं, आप CD डालते हो, आप अपना मोबाइल अटैच करते हो, एज सुन एज यू अटैच एनी न्यू मोबाइल, वॉट एवर इज इट इज डिटेक्टिंग दैट डिवाइस। वो क्या करता है, उस डिवाइस को डिटेक्ट करता है। जैसे ही आप आपका आपका मोबाइल आपके केबल के थ्रू आपके कंप्यूटर को अटैच करते हो, और फिर यू आर यूजिंग द पेन ड्राइव, इफ यू आर इंसर्टिंग द पेन ड्राइव इन दैट USB port, what is happening? Instantly the message is showing on your monitor that this USB device is run, even though if you are attaching your mouse, if you are inserting the CD or DVD, whatever it. So as soon as you insert any device, you attach any device to your computer, that kernel is detecting that device, and what is happening, it is loading the device drivers to run that specific component. Even though if you are inserting CD, even though if you are inserting your pen drive, what is happening, वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही वो उसको डिटेक्ट हो जाएगा कि ये हार्डवेयर अटैच हुआ है, वो उस हार्डवेयर को रन कराने की जो डिवाइस ड्राइवर है वो क्या करेगा, अपलोड करा देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए। एक्सेप्ट दिस व्हाट इट इज डूइंग, loading appropriate device drivers to access this, assessing
कंट्रोलिंग और हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सेस करने का है और उसको कंट्रोल करने का है. रीअलोकेशंस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट, यानी रिसोर्स एलोकेशन मीन्स how many if you are the server, then your server must have to allocate all the resources in between all the users. Even though if you are the single user, then how to allocate your memory, how to allocate your resources in between all the components. That means आपका पावर सप्लाई किस तरह से अटैच करने का है, किस तरह से उसका मेमोरी का एलोकेशन करने का है, आपकी कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी जो भी है, आपकी रैम और रोम को मैनेज करने का है. सो ऑल दिस मैनेजमेंट इज डन बाय कर्नल इटसेल्फ. कर्नल मीन्स अ प्रोग्राम, इट इज़ अ कोडिंग प्रोग्राम. वो अपने आप में क्या है, एक एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम है. कर्नल कोई पार्ट नहीं होता है. इट इज़ नॉट अ पार्ट लाइक जैसे कि ये CPU है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड. नो, इट इज़ जस्ट अ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कर्नल कहा जाता है. इट इज़ अ प्रोग्राम. ओके, सो क्रिएटिंग एंड स्टॉपिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, शेड्यूलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोवाइडिंग CPU input output memory and protection. So by definitions, kernel is the IS of the operating system. Okay, the shell. The shell क्या होता है? In short, shell means your screen. आपके मोबाइल की स्क्रीन, आपके मॉनिटर की स्क्रीन, आपके प्रोजेक्टर की स्क्रीन, आपने अगर आपके घर में अगर टच स्क्रीन टीवी है तो टीवी की स्क्रीन, वॉट एवर इट एम, एनी स्क्रीन बाय थ्रू विच यू आर प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड टू योर डिवाइस. आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको भी शेल कहा जाता है. आपके कंप्यूटर का मॉनिटर का जो स्क्रीन है उसको भी शेल कहा जाता है. सो शेल इन द सेल्फ इज द शेल. The shell is the most visible component of operating system bundle. Operating system bundle यानी कि पूरा operating system. So much so that most people identify the operating system by looks of the shell. By the looks of the shell यानी कि उसका कंप्यूटर का आपके शेल के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या दिखता है, उससे आपके कंपोनेंट्स का पता चल जाता है. ओके, so most people identify operating system by looks of the shell. The shell allows the user to express their wishes. जैसे कि किसी एंजल की तरह आपकी विश क्या है वो एक्सप्रेस करना ही का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा है. अगर दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन और यू आर गिविंग एनी कमांड टू योर कंप्यूटर, व्हाट यू आर डूइंग, you are either clicking on the shell, you are either entering through keyboards. That means you are writing, you are giving your wish on the shell. So what is the shell is known as? The shell allow user to express their wishes, what they want the computer to do to the computer system by providing a user interface. User interface, that means user, that means we are the user and computer. In between computer and us, what is the communication facility we are using? This is known as the user interface. What do you mean by user interface? Nowadays we are using graphic user interface. Okay, there are two main categories of user interface, a command line interface and a graphical user interface. We will discuss this, what is the difference between command line interface and graphical user interface. The CLI, that means command line, is the expect only low cost, low power text-based terminal. It works by repeatedly accepting textual commands from the user and executing them. One needs to remember the commands through help may be available at certain level of typing skill are needed to operate such system. In the early days of computing, when technology was not as advanced, CL was the only option. Later on, graphical user interface was developed. Okay, so what is the difference between command line prompt and a graphical user interface? You cannot imagine nowadays in this era, the children, or you can say even the youngster also, they have seen the computer as a multimedia device. Okay, that means your computer is allowing you to work. You are using Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Photoshop, etc. Nowadays you are using to see movies, to play the games, to learn from you can use the internet to gather the information. You are listening music from it. You are seeing movies, and even you are storing the pictures and movies, and you are transferring these on the internet and through the internet also. So nowadays everything is easy.
Now that is, if a kid hardly more than 3 to 4 years, if even though if you are providing the computer to her or him, what they are doing, they are, if you are asking the first standard student to start the paint and do the painting, okay, what they will do, they will come to the computer, they will recognize that icon of the paint and they are clicking that paint, placing the enter, and the paint software will be start for them to do the painting. But before this era, before this generation, computers was totally black and white. You haven't seen, and even though you cannot imagine, that computer even do not have the colors also, not the pictures, not the movements also, but they don't have the colors also. Whatever they are storing are in the totally in the form of just in the text and numbers, and they are showing just two colors, black and white. Okay, so to use this computer, it was very hectic, it was very impossible. The highest memory, that means you have to recite just so many commands, you have to keep in mind, and you also have the good typing skill to give that command. That means अगर if you want, अगर आपको सिर्फ एक वर्ड का फाइल खोलने का है, what you are doing, आपका एक C ड्राइव D ड्राइव के ऊपर you are having your names folder, and in that folder my file is stored for, आपके एक वर्ड की फाइल है, आपका D ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर है my folder, और उसके अंदर आपकी एक वर्ड की फाइल है. Just assume that you are having on D drive my name, and in that folder we are having the word document named my file. What you are doing, if you want to use that file, what you are doing, you are just going to my computer, click on the D drive, you will click that specific folder, my file, my folder, and in that folder you are having the word document my name, my file, and you opening that just by clicking, just by 2-3 or more than 2-3 clicks, and you are opening that file just by recognizing the pictures or clicking the shape. But in earlier era, if you just want to, in the similar way, if you want to open that file, you have to type a long command, that means D: on that file my folder / my files.xls or doc. In this way, you have to give a long command just to open a single file. So it was very impossible and also very hectic to use them. You have to remember many more things. You have to remember the even the small letters and capital letters. How many spaces you have given, how many small letters, and what numbers you have given. Even though if you are making a simple mistakes, if you are adding or subtracting any extra spaces given between the names also, then only your file then even your file is not going to be open. यानी कि अगर आपने आपकी फाइल के नाम लिखते हुए गलती से कहीं बीच में स्पेस है, वो स्पेस छोड़ दिया या फिर स्पेस है और आपने नहीं दिया, then also your file will not open. So that much Eric was handling to the computer. इतना irritating था वो कंप्यूटर को हैंडल करना. But it whole picture was changed as soon as the graphical user interface came. That means interface means communication. We are facing to each other and we are communicating with each other बस just by facing with each other. हम लोग कंप्यूटर के पीछे पीठ दिखा के काम नहीं करते. We are facing. Okay, so this is the you are facing. Then what is the graphics? You have seen small pictures on your shell. Those are known as the icon. ओके, सो अभी जैसे एग्जांपल दिया कि 3-4 स्टैंडर्ड ईयर्स का बच्चा है, उसको अगर आप पेंट करने के बोलिए, व्हाट विल हैपन, ही इज जस्ट ओपनिंग दैट क्लिकिंग ऑन दैट पेंट आइकॉन एंड ही इज क्लिकिंग दैट पेंट आइकॉन एंड ओपनिंग दैट पेंट एंड विल स्टार्ट डूइंग द पेंट. कैसे पता चला एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को? क्या उसने कोई रिटर्न में कमांड दिया? नहीं. उसने क्या किया, आपके मॉनिटर के ऊपर जहाँ पे भी पेंट आइकॉन है उसके ऊपर डबल क्लिक किया, वो पेंट आपके लिए उसके लिए सॉफ्टवेयर ओपन चालू हो गया और बच्चे ने पेंटिंग करना शुरू किया. Why? How it is open? Because he memorized that icon. आपके लिए कलर्स और पिक्चर्स रिमेंबर करना, स्टोर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन लेंदी टेक्स्ट लाइन कमांड. एक लंबी सी टेक्स्ट की लाइन की कमांड याद करने से बेहतर है आप क्या करते हो, एक सिंपल छोटा सा पिक्चर याद कर लेते हो. सो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस ग्राफिक्स.
ओके आपके कंप्यूटर के ऊपर आपने कोई भी आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है, आप क्या करते हो, आप वर्ड का डॉक्यूमेंट लिखते हो, नो व्हाट यू आर डूइंग, वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन द डब्ल्यू, एक्स के ऊपर क्लिक करते हो, आपकी एक्सेल की फाइल खुल जाती है। इन द सेम वे व्हाट यू आर यूजिंग, you are memorizing that graphics, you are memorizing this picture, and through this is very helpful to use this computer. So why it is happen, because the graphical user interface, graphics means that small icons, that pictures is known as graphics, user means us, and interface means communication, face to face communication. So now we are communicating with computer, we are doing work with computer through this graphics. वो उस ग्राफिक्स की वजह से क्या हो गया, कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत ही आसान हो गया है। सो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट्स के बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जैसे ही एरा आया, जिस तरह से उसके बाद एक कंपोनेंट्स यूजर्स में जोड़ते गए, दैट मीन्स पहले कंप्यूटर डीफ एंड डम था, सुनता भी नहीं था और कुछ बोलता भी नहीं था। नाउ कंप्यूटर इज स्पीकिंग एंड हियरिंग आल्सो, दैट मीन्स इवन दो इफ यू आर यूजिंग द गूगल यू कैन अनाउंस द कमांड एंड कमांड आर verbally taken by the Google and Google is working for you. Nowadays this is also happening, and the computer is hearing the offering you to hear the listen the music, आपको वो संगीत भी सुनाता है, आपको पिक्चर्स दिखाता है, आपको मूवीज दिखाती है, दैट मीन्स दिस इज द मल्टीमीडिया कंप्यूटर nowadays we are using, but initially it was on the command line prompt, command line, that means you have to give the command within a single line, यानी कि आपके अगर बीच में एंटर हो गया तो वो लाइन भी यूजलेस हो जाएगा। सो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट we are using in earlier era command line prompt, but nowadays what we are using graphical user interface. Okay, in the GUI environment, the scene contains pictorial elements like a desktop that acts as a background or everything else. Window, a rectangular portion of the screen dedicated to a particular program or interaction. डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर प्रोग्राम मीन्स क्या होता है, अगर आपने वर्ड का एप्लीकेशन खोला है तो आपकी जैसे ही आप उसको मैक्सिमाइज करते हो तो क्या होता है, आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वर्ड दिखता है, यानी कि वर्ड से रिलेटेड सारे उस सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसका जो क्या होता है डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, क्या मतलब होता है कि आपके जैसे ही आप उसको मैक्सिमाइज कर देते हो तो ऑन स्क्रीन अभी क्या रहेगा, आपका वर्ड रहेगा, उसके पीछे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे, इट डजंट मैटर आपने कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं या नहीं किए हैं, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। फ्रंट पे क्या आ गया है अभी, वर्ड, दैट मीन्स इट इज डेडिकेटेड टू वर्ड। आपके स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, वर्ड का टाइटल बार दिखेगा, वर्ड का लोगो दिखेगा, वर्ड का मेनू बार दिखेगा, दे आर शोइंग यू डिफरेंट ऑप्शंस एंड डिफरेंट टैब्स एंड टूल्स ऑन द स्क्रीन नाउ, बट ऑल आर रिलेटेड टू द वर्ड। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आधे में वर्ड है और फिर इसमें से पीछे से पॉपअप हो रहा है पीपीटी का भी ऑप्शन, नो इट इज नॉट पॉसिबल। If you are using software Word, that means if you are maximizing the software, the whole shell is now dedicated to your Word. So, window as a rectangular portion of the screen dedicated to a particular program or interaction. Icons, that means small pictures representative of program and other elements. Menus, a list of actions from which the user may select one. आपके हर एक सॉफ्टवेयर में एक ऊपर मेनू बार होता है, you can see फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा एटसेट्रा एटसेट्रा, डिपेंड्स ऑन ईच सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर में अपना खुद का मेनू बार होता है। सो दीज आर दी मेनू बार्स, ओके। सो यूजर में सेलेक्ट फ्रॉम वन, देन बटन्स फॉर रेक्टेंगुलर एरियाज दैट रिएक्ट टू माउस क्लिक, बटन्स होते हैं जैसे कि आपका मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, क्लोज बटन है, ओके। द लेटर एलिमेंट बिलोंग टू पर्टिकुलर विंडो. The windows may hide behind other windows and reappear and can often be moved around or resized. यानी कि अगर आपने एक टाइम पे 3 सॉफ्टवेयर करके रखे हैं, 4 सॉफ्टवेयर करके रखे हैं, देन आल्सो यू कैन रिसाइज देम, मिनिमाइज देम, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर चारों की चारों विंडोज दिख सकती हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन ऑन योर शेल। आप एक साथ 2 विंडोज भी बना सकते हो और दोनों विंडो में एक में डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी चला सकते हो। सो एवरीथिंग इज हैपन due to this graphical user interface. Okay, so विंडोज में हाइड बिहाइंड द विंडोज और रीअपियर, एक के बाद दूसरी विंडो, दूसरी के बाद तीसरी विंडो, आप डिफरेंट टैब्स के साथ भी यूज कर सकते हो। ओके, सो मिनिमाइज टू स्मॉल पॉट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, मैक्सिमाइज टू ऑक्यूपाई द होल स्क्रीन एटसेट्रा। अभी आपको मिनिमाइज मैक्सिमम बटन एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं होगी। सो अपार्ट फ्रॉम द कीबोर्ड फॉर इनपुट देयर इज अ माउस पॉइंटर दैट कैन बी मूव्ड अराउंड यूजिंग अ माउस और ट्रैक पैड।
There are one of 3 buttons that can be clicked or scroll over to scroll area. अभी तो 2 या 3 बटन होते हैं, पहले तो सिंपल 2 ही बटन होते थे. Now we are having the scroll button, that means with the wheel in between 2 buttons are also there. So before this mouse was also not there. We have to strictly stick to the keyboard. आपकी कमांड्स सारे कैसे जाएंगी? Through only and only keyboard. There was no mouse, there was no menu bar, there was no other windows. That means if you have to open any other software, जैसे कि अभी आपने वर्ड चालू किया है, आप वर्ड में काम कर रहे हो और सडनली आपको एक रिक्वायरमेंट है कि तुरंत आपको उसके साथ बाजू में एक्सेल भी चलना चाहिए. सो वॉज इट पॉसिबल? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम. ये कब क्या पॉसिबल हुआ? जब आपके पास विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन आए, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन आए. पहले अगर आप वर्ड चालू कर रहे हो और वर्ड्स को करते करते आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको क्या करना पड़ता था? यू हैव टू सेव दैट वर्ड फाइल, देन आफ्टर क्लोज दैट वर्ड फाइल, री ओपन द एक्सेल शीट, वर्क देयर एंड अगेन यू हैव टू सेव द एक्सेल शीट. यानी कि ऐसा नहीं होता था कि एक साइड में आप एट अ टाइम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो. एक बार में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर चलता था, वो आपका शेल किसके लिए था? एक बार में सिर्फ एक ही विंडो यूज़ कर सकता था ना. एट दैट टाइम इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट द शेल टू डिफरेंट सॉफ्टवेयर. अभी आप क्या होता है, एक से ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हो, आपको रिसाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो. द मल्टीपल प्रोग्राम्स आर रनिंग एट अ टाइम. यानी कि आपके स्टार्स बार के ऊपर विंडोज भी है, एक्सेल भी है, पीपीटी भी है, तीनों की फाइल एक साथ आपकी ओपन हो सकती है इजीली. यू आर यूजिंग वन और ओनली वन एट अ टाइम. यानी कि आपकी फाइल एक बार में एक ही सॉफ्टवेयर रन होगा, पर उसके पीछे आप क्या कर सकते हो? 2 या 3 जितने आपकी नीड है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आप ओपन रख सकते हो. यू कैन मिनिमाइज एंड शफल इन बिटवीन देम. आपको जो शफलिंग करके आपका जो यूजफुल सॉफ्टवेयर है वो आपके फ्रंट पे आ जाएगा और बाकी सॉफ्टवेयर उसके पीछे क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे. सो इट वॉज हैपन जस्ट ड्यू टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओनली टू ग्राफिक, यानी कि कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से जब आपका कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट हुआ तभी ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हुई. So what we have learned today? We have learned about device drivers. Again, I am explaining you device drivers are utility programs. Kernel is an operating systems program. Kernel जो प्रोग्राम है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है. और हमने उसके बाद सीखा we have learned about the kernel also. So after this we will learn more in next session.